Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग की तैयारी हो गई टेस्ट के लिए? आज हम लोग एक क्विक रिवीजन रख लें ऑफ बाइनोमियल एंड पीएनसी। Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के कुछ पॉइंट्स लग रहे हैं वेयर यू वांट टू आस्क एनीथिंग, राइट। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बाइनोमियल से। बाइनोमियल की जल्दी से सब लोग कॉपी निकालोगे। बाइनोमियल की जल्दी से कॉपी निकालो। बाइनोमियल में देखना शुरू करो क्या क्या आपने स्टडी किया था। मैं वैसे पूरा ही आपको ब्रीफ करूंगा, बट फिर भी एक बार देख लो, दैट विल बी इजियर फॉर यू। Binomial revision, right? First thing what we have to do is कुछ लोगों ने शायद लेट से ज्वाइन किया है। जस्ट ब्रीफ यू कि we have started revision of binomial and then we'll go for PNC. So binomial first two. Direct question.
Kevin, Subham, very good. So this is one of the simplest question I can say, right? We required coefficient of x to the power -2. So 1 is there, so we need 20c2 plus, if this power 3 is there, we need 5, 20c5 into 4 plus 5 into, this is 5, so we need 7 of this, so 20c7 or 13, whatever it is, right? So first for 1 we are getting this one. For x cube, 1 by x to the power 5 I required. For x to the power 5 I need 1 by x to the power 7. Then only I can go for 1 by x square. Okay. Okay, everyone. You need one more or this? I guess. Okay. So go for second one. Independent of x, tr plus 1 term. Term will be fifth and coefficient will be 20c4. Right? Hope everyone is getting this. सभी के सही होंगे ये तो. मिडिल टर्म याद होगा, इवन के लिए हम लोग सीधा n/2 प्लस 1 टर्म हो जाते थे, ऑड के लिए 2 मिडिल टर्म थे, राइट? बट इसमें एक क्वेश्चन और जो रैशनल एंड इरैशनल टर्म के लिए थे, 2 to the power 1/2 plus 3 to the power 1/3 whole to the power 108. How many rational terms are possible in this? Total number of rational term in this. For rational term, we have to go with the LCM of the number 2 and 3. The LCM will be 6. So number divisible by 6, right? Number divisible by 6, I know 108, 1 divided by 6, 18. Total number will be 18, but if I'll give 1 power 0 to this, then again this will work.
So 18 plus 1 will be 19. So careful with 0 only, right? Careful with 0 only, right? Now, next is the based on the formula NCR upon NCR minus 1, or we can say NCR plus 1 upon NCR. This will be N minus R plus 1 upon R. But if this is NCR upon R minus 1, in place of R, we have to put R minus 1. Right? So this is the formula for this. Right? NCR upon NC R minus 1 is this. If I'm writing R plus 1 and this is R, right? In place of R, I have to put R plus 1. So this will be N minus R upon R plus 1. So you have to remember, or you have to change the formula accordingly, right? क्वेश्चन इस पर बेस क्या होंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पर बेस होते हैं लाइक 3 consecutive terms of 1 plus x to the power n are in the ratio, क्या ratio? 1:7:42. Find n, find total number of terms or whatever it is, right? You have to use this formula, right? कभी कभी सीरीज में भी ये यूज होता है जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, राइट? अगर सीरीज वाले हैं तब भी यू हैव टू यूज द सेम थिंग, राइट? सो फर्स्ट दिस एंड सेकंड इज, एक सीरीज का क्वेश्चन मैं दे देता हूं. NC नॉट राइट, मल्टीप्लाई साथ में किया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर.
Very good, everyone. Very good. Subham Namam. Very good. Very good. So first is, I guess, okay to all of you. So terms are r plus 1 or whatever, like, so first two n minus r plus 1 upon r is equal to 1 by 7, or n minus r by r plus 1 is equal to 1 by 6. Just you have to do equation to unknown. Right? Now, second one, ये देखना, ये n माइनस 1 होगा और ये n होगा. राइट? ऊपर नीचे में थोड़ा सा चेंज को देख के रखना. राइट? ये है आर स्क्वायर एन सी आर माइनस 1 द होल स्क्वायर समीशन r is equal to 1 to n. Right? We know the formula n minus r plus 1 upon r square into r square cancel out, summation whole square n plus 1 the whole square minus 2r n plus 1 plus r square, use summation. Right? You know this. So division के लिए what you have to do, what you supposed to do with the division. Everyone is okay with this, right? Next is called the numerically greatest term. ग्रेटेस्ट टर्म अगर न्यूमेरिकली नहीं गिवन रहे तो एनसीआर में n/2 या n+1/2 n-1/2 पे होगा. राइट? एनसीआर पे ये ग्रेटेस्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी. जैसे 10CR मैंने दिया तो r इज इक्वल टू 5 पर ये मैक्सिमम देगा. 11CR मैंने दिया. राइट? ये 11C6 पे या 11C5 पर ये मैक्सिमम देगा. राइट? ये इसका अगर केवल एनसीआर गिवन है तो. लेकिन पूरे टर्म गिवन है, लाइक 1 + x टू द पावर n, एंड इस पे अगर हम लोग बात करना चाह रहे हैं तो दिस tr + 1 अपॉन tr greater than equal to 1. राइट? तो n minus r plus 1 upon r into a by x का मॉड greater than equal to 1. थोड़ा सा सॉल्व कर लें. मॉड ऑफ x by a और r लेस देन इक्वल टू n plus 1 अपॉन, जस्ट सॉल्व करते हुए यहां तक गया. अगर r इंटीजर आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है दो टर्म की बात हो रही होगी. अगर r इंटीजर नहीं आते हैं, नॉन इंटीग्रल वैल्यू आता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी लेस देन के लिए होगा वो वाली वैल्यू, मतलब 7.5, 7.2, 7.3 हुआ तो r इज इक्वल टू 7 लेंगे आपको. ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है. बट ये ख्याल रखना, ये तब की बात हो रही है जब 1 + x है ना, x की वैल्यू जो भी गिवन रहे. जैसे मैंने दे दिया 2 + 9x, 2 + 9x, 2 + 3x टू द पावर 9, x की वैल्यू 3/2 दे दी. जल्दी से निकाल के देखे तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म
कैलकुलेशन चेक करो शुभम। Answer, write down the answer. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में, ये समझना कि ये 1 प्लस एक्स नहीं है, तो 2 को मैं पहले बाहर निकाल लिया। अब क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है, राइट। अब यहां से x की वैल्यू 3/2 है, तो अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। मीन्स TR+1 टी आर टर्म का मॉड लेना होता है आपको। n गिवन है मेरे पास 9, राइट। ये हो गया 3/2 x का मॉड, और x की वैल्यू मॉड इसलिए है क्योंकि नेगेटिव भी अगर होगा तो आपको यहाँ पर वही रखने हैं, राइट। 3/2 आपने रखा, 10 माइनस r अपॉन r 9/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। हो गया 90 माइनस 9r ग्रेटर देन इक्वल टू 4r, r लेस देन इक्वल टू 90 अपॉन 13, राइट। 6 12/13, राइट। तो r की वैल्यू मैं लूंगा 6, मतलब टर्म होगा 7। होप एवरीवन गेटिंग दिस। कैलकुलेशन चेक प्लीज। टर्म 7 होगा, डन। ओके एवरीवन, आगे मैं बढ़ सकता हूं यहां से। ऑल आर ओके। नेक्स्ट आता है इसमें डिविजिबिलिटी की बात। लाइक मैं आपको प्रूफ करने दूं या समथिंग, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमेशा ख्याल रखना ये क्वेश्चन सबसे सिंपल होगा। ये आपको गिवन है डिविजिबल बाय 64, राइट। ये प्रूफ करना है, तब तो मुझे तो पूरे ले जाने पड़ेंगे। नहीं तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू 1 डालोगे और वहां से अपने आप n की वैल्यू 1 डालोगे, अपने आप यू विल गेट द आंसर, राइट। बहुत सारे बाइनोमियल में सबसे सिंपल सा आपको क्या रहेगा कि आपको n की वैल्यूज पुट करनी है एंड डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर, राइट। 4 ऑप्शन है, n में ही होंगे, वहां से डायरेक्टली, या पैटर्न थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, राइट। उसके बाद अगर याद हो आपको तो हम लोगों ने किया था इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट वाले क्वेश्चंस, जैसे 5+2√6 to the power n is equal to I plus f. I belongs to odd integers. फिर इसी में मल्टीप्लाई करने के I plus f इंटू एफ की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करने को होती है
राइट। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन इस पे भी फ्रेम होते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको ये दिया, आप लोगों को दिया है ना? याद है या फिर मैं करूं? आप लोग कोशिश करो, उसके बाद अगर मैं दिखा दूंगा, एक बार ब्रीफ कर दूंगा। Done, everyone. So if you remember this, this was 5 plus 2 root 6 to the power n is equal to I plus f, and 5 minus 2 root 6 to the power n is equal to f, right? दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने पर 5 plus 2 root 6 to the power n प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 टू द पावर n, ऐड किया तो ये हो गया I प्लस एफ प्लस एफ। वी नो दैट ये तो इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर है, तो f प्लस एफ को भी इंटीजर होना चाहिए, एंड ये 0 से 2 के बीच में ही होगा। एंड अगर f प्लस एफ इंटीजर है, 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसे 1 होना चाहिए। और अगर ये 1 है, ये क्वांटिटी मेरे को साफ दिखाई दे रही है कि वो ट्वाइस ऑफ कोई इंटीजर आ रहा होगा, इज इक्वल टू आई प्लस 1। मीन्स आई की वैल्यू जो आ रही होगी वो आ रहेगी 2m माइनस 1। अगर मैं थोड़ा फास्ट कर गया हूँ या किसी को लगता है और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, प्लीज लेट मी नो।
इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, राइट, और आसान पड़ेगा आपको। √2 + 1 to the power 6 is equal to I plus f, राइट। अगर इसी को मैंने √2 - 1 to the power 6 कर दिया तो ये f आ जाएगा, फ्रैक्शन। मैं दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो आई एम गेटिंग √2 + 1 to the power 6 plus √2 - 1 to the power 6 is equal to I plus f plus f. We know that value of this is 198, I plus f. अब ये जो फ्रैक्शन है वो भी 0 से 1 के बीच होगा और कैपिटल भी 0 से 1 के बीच होगा। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये f plus f की जो वैल्यू है ये 0 से 2 के बीच होगी, मतलब f plus f की वैल्यू जो हो गई वो 1 हो गई, राइट। तो f plus f 1 हो गया तो I की वैल्यू हो गई 198 minus 197. Now getting this? Variety of question इसमें आते हैं, so careful, right? Next, 5 to the power 99 when divided by 13 leaves the remainder. याद है ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था। चल तो ट्राई करके जल्दी से बताओ तो डिविजिबिलिटी के। एक बार फिर से चेक करो केविन। वेरी गुड। 5 to the power 99. 5 to the power 98 is 25. अब ये एक्सपैंड करूंगा तो लास्ट टर्म को छोड़कर सभी में 26 तो आ ही रहे होंगे और लास्ट टर्म में आ रहा होगा -1, राइट। तो हर एक टर्म 26 से डिविजिबल है, मतलब 13 से डिविजिबल है। लास्ट बचा मेरे पास -5, और रिमाइंडर कभी -5 नहीं हो सकता, मतलब 8 इज द रिमाइंडर। वेरी गुड शुभम, जिबल, अमोक एंड एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
ये एक वेरिएशन या बोला जाए एक क्वेश्चन का तरीका हमेशा आपको रहेगा कि जिसमें डिविजिबिलिटी की बात हो या राइट व्हाट यू हैव टू डू राइट। इसके बाद मेन पोर्शन आ जाता है आपका समेशन, राइट, समेशन ऑफ द। तो मैं लिखते जाता हूं, राइट। जो बेसिक थे वो वाले तो 10 से 10, 10 से 10, ऑड वाले 10 से 10, फर्स्ट हाफ 10 से 5, लास्ट हाफ 10 से 10, and sixth, first half up to 10 C4, right? ये मैंने 6 आपको लिख के दिए। राइट डाउन द आंसर। वेरी गुड स्पीड केविन। मन वेरी गुड। नमन वेरी गुड। 4, 5, 6 पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राइट, so start with this.
First one, what I'm getting 2 to the power 10, right? This is half of the series, right? 10C0, 10C2, 2 to the power 9, odd number 2 to the power 9. But you have to be careful for this, right? This is not half of the series because 1 plus x to the power 10, right? If it is given 1 plus x to the power 10. So 10C naught, it will start goes to 10C10. So total number of terms will be 11. So obviously total number of terms are 11 in this case. So this could not be divided into two parts, right? So it depends on this term 10C5. 10C5 is the term that's coming in the middle of this, right? So if we have to add or subtract this, that depends on your answer. So 2 to the power 10 plus 10C5 by 2. Again, the same thing. But in this, 2 to the power 10 minus 10C5 by 2. Because that term is not there, so we have to add or subtract. So is this okay? But if the question is given in the form of, इस पे दो बातें हो जाएगी, right? अगर मैं देता 1 plus x to the power 11 का देता, 13 का देता, 15 का देता, तब ये दिक्कत मेरे को नहीं आती, ये सब टर्म मेरे को प्लस माइनस नहीं करने होते, ये ऐसा ही रहता सीधा जो ऊपर में आ रहे थे, राइट? अदरवाइज यू हैव टू बी केयरफुल. आई गेस सबको याद आ गया होगा, राइट? एक जो यहाँ पर समझने वाली बात है. एंड सेकंड, इट्स नॉट ओनली बाइनोमियल. मैं अगर x प्लस वाई टू द पावर n करके मैं बोलता 2x प्लस 3y a नॉट प्लस a1x y टू द पावर n x टू द पावर y टू द पावर n माइनस 1 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड मैं बोलता कि इसमें मेरे को सम ऑफ द कोफिशिएंट चाहिए. ध्यान से सुनना ना. सम ऑफ द कोफिशिएंट कभी भी निकालने के लिए x y z u जो भी टर्म दिए हुए हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, सबको 1 पुट कर देना है, right? Means like x plus y plus 2z plus u to the power 10 is equal to a naught plus a1x plus a2y करते करते आखिरी में जो भी टर्म आए हों 10 plus 13c, 4 टर्म आए हों u to the power 13c जो भी आया टर्म, राइट? 10. अब इतने टर्म है, मैं बोल रहा हूँ इनका कोफिशिएंट का सम मेरे को चाहिए. What is the sum of the coefficient? So sum of the coefficient के लिए राइट वाले को मेरे को नहीं देखना है, मेरे को लेफ्ट वाले को ही देखने हैं. x y z u जो भी गिवन है सबको मैंने 10 रख दिया. 1 1 5 to the power 10 would be the answer, right? Sum of the coefficient. Is this okay everyone? कभी कभी ये बाइनोमियल की जगह 1 plus x square to the power 10 मैंने दे दिया, राइट? ये बाइनोमियल नहीं है, इसे बाइनोमियल लिख सकते हो आप, बट ये है राइट, इतने टर्म्स है. अब यहां मैं बोलता हूं सम ऑफ द कोफिशिएंट आपको चाहिए, ए नॉट प्लस a1 प्लस a2 a20 चाहिए. क्या किया जाए? x की वैल्यू 1 रख दी, 1 रखते ही ये क्या आ गया 3 to the power 10, राइट? फर्स्ट. सेकंड मैं आपको बोल देता नहीं, मेरे को चाहिए a नॉट माइनस a1 प्लस a2 अप टू a20 चाहिए. क्या करूं? x की वैल्यू रख दी -1, 1 to the power 20. मेरे को केवल चाहिए इवन वाले या ऑड वाले चाहिए, राइट? ए नॉट प्लस a2 प्लस a4 ये वाले चाहिए, तो 3 to the power 10 प्लस 1 बाई 2. ऑड वाले चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया. नोट डाउन प्लीज ना. ये अच्छा, इसमें मैं बोलता हूं कि ये जो एक्सपेंशन है इसमें x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये भी ट्राई करो तो एक बार, फिर मैं बताता हूं.
होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। x टू द पावर 10 निकालना हो तो क्या करेंगे? ये तो बड़ा गंदा सा काम फंस गया, कैसे निकाला जाए? सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 20 में मेरे को चाहिए x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट ना। है थोड़ा सा गड़बड़ वाला काम है, बट देखते हैं, ध्यान दो। मैंने क्या कहा, इसमें 1 को मैंने पावर p दिया, x को q दिया, एक्स स्क्वायर को r दिया, राइट। तो ये गया फैक्टोरियल 20 बाई फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। इसे आप चाहो तो एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या चाहो तो डायरेक्टली देख सकते हो। याद करो, पीएनसी में आपने पढ़ा हुआ है, तीन चीजों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रुपिंग करनी है, तो इसी तरह से हम करते हैं। अब ये ग्रुपिंग होने के बाद मेरे को 10 पावर चाहिए, तो 10 पावर के लिए q प्लस 2r की वैल्यू 10 होनी चाहिए, फर्स्ट केस। एंड p प्लस q प्लस r की वैल्यू जो है वो मेरे को दी हुई है 20, सेकंड केस। अब आपके पास काउंटिंग के अलावा कोई और अच्छा सा तरीका नहीं है, इतने बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ये 10 के जगह पर आपको देगा 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा ना। बट यहाँ पर आपके पास P Q R के लिए ऑप्शन को कैसे करोगे? जो बड़े वाले नंबर है ना, वहां से स्टार्टिंग होगी। जैसे R को 0 रखा तो Q की वैल्यू 10 हो गई, ये वैल्यू भी 0 हो गई। 1 रखा इसे, राइट, ये वैल्यू 8 हो गई, ये 1 होगा। ओह सॉरी, ये 10 होगा, ये 11 होगा, राइट। R की वैल्यू मैंने 2 रखी, ये 4 हो गया, तो ये 6 हो गया, 12 हो गया। इसे 3 रखा, ये 6 हो गया, ये 4 आ जाएगा, 4 रखा, 2 आ गया, 5 रखा, 0 हो गया, 15 आ गया। ये इतनी वैल्यूज। अब इन पूरे को मैं यहां पर रखता जाऊंगा और सबका सम जो होगा वही आपका आंसर होगा। नोट डाउन प्लीज। दूसरा वे भी हो सकता है, वो भी दिखाता हूं, देख लो। वन प्लस एक्स को एक टर्म लिया, एक्स स्क्वायर को सेकंड टर्म, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6, ऐसे ही चल रहे हैं। अगर 1 बाई 1 आप लिखना चाहो तो ये भी हो सकता है। यहां से ये आएगा 20c नॉट इंटू 20c 10 प्लस सेकंड से आएगा 20c1, यहां से आ गया, एक्स स्क्वायर यहां से आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए? यहां का पावर 18 चाहिए, 19c 18, राइट। उसके बाद 20c2 ये आ गया, पावर 4 आ चुका है, यहां से 16 चाहिए, 18c16 प्लस 20c3 6 ये आ गया मेरे पास। मुझे चाहिए क्या? 14, 17c14 एंड सो ऑन। ये भी तरीका है, बट जैसा भी आंसर का फॉर्म दिया हो, दैट वी हैव टू बी केयरफुली डील विथ। ओके,
Kevin, okay. Right, next one. एक क्वेश्चन कर लो आप. x to the power 5 का कोफिशिएंट चाहिए एक्सपेंशन में.
डोंट यूज बाइनोमियल ना, मतलब ट्राइनोमियल ही यूज करो इन क्वेश्चंस पे, तो दैट वुड बी गुड, राइट। जैसे 2 to the power p 3x to the power q x cube to the power r into factorial 6 by p q r। p प्लस q प्लस r की वैल्यू 6 है, पावर में देखूं तो q प्लस 3r की वैल्यू मुझे लानी 5 है। r p q r is equal to 0, q is 5, p is 1, r is equal to 1, q is 2, right, p is 3 and not possible, right, नेगेटिव में वैल्यूज आ रहे हैं, दो ही टर्म होंगे, तो यहां से मैं पी क्यू आर की वैल्यूज रख देता हूं, राइट। एक बार यहां से मैं पी क्यू आर की वैल्यूज रख देता हूं, तो होपफुली यू विल गेट आंसर फ्रॉम बोथ दिस। इज दिस ओके? Is this okay, everyone? Right now, so सीरीज के कई डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा केयरफुल होके यू हैव टू सॉल्व दिस, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं जैसे टर्म रख लेता हूं 10c0 10c1 10c10, ये मैंने रख दिया मान लो, एंड मैं यहां पर बोलता हूं कि x to the power 10, x to the power 9, x to the power 11, इनके कोफिशिएंट मेरे को चाहिए 11, 10 एंड 9 के, या x to the power 0, x to the power 1, x to the power 0 तक चलेगा, 1 पे दिक्कत जाओगे, राइट। इतने मेरे को इनके आंसर चाहिए 0, 9, 10, 11। देखें क्या क्या हो सकते हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, डन। देखें, शुरू करें। राइट, चलो पहले तो x 0 से लेके स्टार्ट करके 10 तक गया, मतलब ये x टू द पावर 11 है, माइनस x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट आएगा 10c0 प्लस 10c1 अप टू 10c10 आएगा, प्लस x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट आएगा प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम 10c0 सबसे मल्टीप्लाई हुआ, मतलब प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, राइट। एंड x टू द पावर 0 का मतलब क्या होगा, राइट, सबके सब कांस्टेंट टर्म हो गए। तो 11 टर्म है तो माइनस ऑफ 10c0 10c1 10c2 अप टू 10c10, राइट। यहां तक हमारे पास कहानी रह गई, राइट। इसमें ये तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 टू द पावर 10 है, कोई दिक्कत नहीं। मेन इसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया था प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम 10c0 10c10 होगा, 10c1 10c10 होगा, एंड सो ऑन करते करते 10c9 इंटू 10c10 होगा। ये सबका सम चाहिए हमें, राइट। ओके, सबका सम निकालने का क्या तरीका हम लोगों ने देखा था, 10c0 प्लस 10c1 अप टू 10c10 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10c0 स्क्वायर 10c1 स्क्वायर अप टू 10c10 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आपको जो चाहिए वो, मतलब 2 टू द पावर 10 का स्क्वायर माइनस 20c10 अपॉन 2, जो आपको चाहिए उसका आंसर। ये एकदम ख्याल रखना है क्या हुआ। डन एवरीवन। उसके बाद जो सीरीज हम लोगों ने देखी थी वो था एपी के साथ में बाइनो सीरीज, जीपी के साथ में, एचपी के साथ में, एंड बाइनोमियल के साथ में बाइनोमियल सीरीज, राइट। इतने हमने देखे थे, राइट। तो एक एक एग्जाम्पल मैं जल्दी से दे रहा हूँ आपको, आप करते हुए आगे बढ़ जाएं जल्दी से, तो थोड़ा हम लोगों के लिए आसान पड़ेगा ना। ये केवल 4 क्वेश्चन, सबके एक मैंने निकाल के दिए हैं, एकदम जो बेस्ट हो सकते हैं वो करते हुए ना, डू इट फास्ट।
Start. Very good, everyone. Snikta, Kevin, Aman, Naman, शुभम, सभी के हो रहे ना? पीयूष, अंश, अंशुमन, अर्णव, अस्का, अश्विन, अस्मी। आंसर लिखो, आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन। मानस, वेरी गुड। Very good, Arnav. Asmi, Naman, good. Dipanjali, Dharmil, Dhruv, Jebel, Patinav, Pritin, Utsav, Vineet, Atharva, Atharv, your audio is not there. थोड़ी देर वेटिंग रूम में वेट करो बेटा। चलो स्टार्ट। फर्स्ट तो सबसे सिंपल क्वेश्चन में एक है, याद होगा आप लोगों को, राइट? इसे सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। 2r NCR plus NCR, right? 2r n upon r, n minus 1 CR minus 1 NCR, r cancel out, both the summations, right? 2n 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n. Hope everyone getting this. First one. Second, NCR by r plus 1, r plus 2 multiply with r plus 1. Now I can rewrite this r plus 1 as r plus 2 minus 1 into NCR by r plus 1, r plus 2, summation, r plus 2 cancel out, summation NCR by r plus 1 minus NCR by r plus 1, r plus 2, right? अब n plus 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, n plus 1 से डिवाइड कर दिया, तो दिस विल बी 2 to the power n plus 1 minus 1 by n plus 1 माइनस, इसे n plus 1 n plus 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 to the power n plus 2 माइनस n plus 2 c naught माइनस n plus 2. That's it. डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। दोनों को पहले देख लो, कहीं कंफ्यूजन हो तो यू कैन डिस्कस। Okay. राइट, ये तो डायरेक्ट सभी ने आंसर लिखा भी है, इट्स वेरी गुड। 1 minus 3 to the power n minus 2 to the power n, but
The last question is -1 to the power r NCR into NCR का समीशन r is equal to 0 to n, ये है, राइट. सो केयरफुल, राइट, नॉट जीरो बेटा, ध्यान से देखना. ये एक टर्म लिया. दिस इज in the expansion of 1 minus x to the power n coefficient of x to the power r, and this is in the expansion of 1 plus x to the power n coefficient of x to the power n minus r. We can write this, right? Now multiplying these two, so ये आ गया 1 minus x square to the power n में coefficient of x to the power n, or because the expansion is of x square, so this will be this, or this is -1 to the power n by 2 nc n by 2. राइट. अब यहां पर दो बातें होंगी, क्या क्या? इफ n इज ऑड, अगर ऑड होगा तो आंसर 0 होगा, n इवन होगा, ये जो लिखा है वो आंसर होगा. केयरफुली नोट डाउन एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके एवरीवन, ओके ओके, राइट डाउन यस. मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके एवरीवन, राइट डाउन यस इन चैट. ओके 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 ओके. सी, एक और वेरिएशन था, यू मस्ट नो दिस, जिसमें एन सी आर प्लस एन प्लस 1 सी आर एन प्लस 2 सी आर ये था, जिसमें जो गिवन था एन वो वेरिएबल है, राइट, और आर यहाँ पर फिक्स है, या नीचे भी वेरिएबल था. तो याद होगा इस पे हम लोगों ने यूज किया था फॉर्मूला एन सी आर प्लस 1 का फॉर्मूला, या तो यूज किया था, या फिर एन सी आर को हमने बोला था इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर के लिए निकालने थे, राइट. सही माने में कहा जाए, आपको बाइनोमियल में जितना हम लोगों ने आज किया यही है बाइनोमियल, राइट. सॉरी पीएनसी के लिए टाइम नहीं बचा है, तो आई रिक्वेस्ट कि पीएनसी के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं, राइट डाउन द टॉपिक अकॉर्डिंगली आई विल टेक दिस. ओके, तो स्टार्ट. नेक्स्ट 3 मिनट में आप लोग जल्दी जल्दी टॉपिक लिखिए, तब मैं उसी तरह से आपको ब्रीफ करता जाऊंगा एक एक टॉपिक. दो चीज मेरे पास आ गए हैं, एक है डिविजिबिलिटी वाले कैलेंडर मेथड था वो, और दूसरा है जब हम लोगों को वर्किंग अपनी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम
एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन, बस इतना ही रखते हैं बेटा अभी के लिए ना। तो पहले तो डिविजिबल बाई मान लो 3, डिविजिबल बाई 3 है। नंबर्स गिवन है आपको 1 2 3 अप टू 100 तक, डिविजिबल बाई 3 का केस है। ये एक कैलेंडर आप बनाओ 3 का टेबल बनाओ, कैसे? वन टू थ्री 100, ये नंबर है 3n+1 का, 3 का फॉर्म। अगर मुझे कितने नंबर सेलेक्ट करने, मान लो 2 नंबर सेलेक्ट करने, तो 2 नंबर सेलेक्ट करने अगर हैं, मैं बोलूंगा एक केस ये होगा या दूसरा केस ये होगा, राइट। ये कितने होंगे? 34 है तो 34c1 इंटू 33c1 प्लस 33c2 फर्स्ट। ओके, फर्स्ट कैलेंडर वन, राइट। सेकंड, permutation when objects are distinct। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, मान लो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 बॉल हैं, नंबर लिखे हुए हैं तो डिस्टिंक्ट हो गए, राइट। ये 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करने हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो अगर दोनों के दोनों मेरे पास, अगर दोनों ही मेरे पास जो गिवन है वो डिस्टिंक्ट हैं, राइट, ये और ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो आप याद रखो ऐसे कि इसमें n⁻r वाला लगेगा, राइट। n⁻r वाला लगेगा मतलब 3 स्टूडेंट को मैंने 3 बैग बना दिया ABC, और 3 बॉल को मैंने 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स बना दिया, राइट। ये A to B मैपिंग हो जाती है, राइट। मतलब मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 के लिए जो कंटेन करेगा वो बेस में होगा। कौन कंटेन कर रहा है? तो स्टूडेंट कंटेन कर रहे हैं, कितने हैं? 3, मतलब आंसर होगा 3⁵। इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, जब इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात होती है तो 3⁵ में क्या, अगर मैं इसी में कंडीशन दे देता कि ईच स्टूडेंट कंटेन एटलीस्ट 1, राइट। तो अब यहां पर 3⁵ में क्या हुआ, ये सबको जाए नहीं जाए सब हो गया, तो मैंने 3⁵ से टोटल किया, उसके बाद मैंने बोला कि गलती हो गई, उसमें वो भी केसेस आ गए जब A, B और C में A को ही गया हो, A को नहीं गया होगा, B को नहीं गया होगा या C को नहीं गया होगा, वो निकालने के लिए मैंने 3c1 इंटू 2⁵ लिखा। लेकिन इसमें एक और गलती हो गई, क्या? 3c1 से मान लो मैंने A को सेलेक्ट किया होता, A को सेलेक्ट किया, और A को सेलेक्ट करने के बाद मैंने BC को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन 2⁵ का मतलब हुआ पूरा का पूरा B या C को चला गया, राइट। सो एक बार A को नहीं दिया और B को नहीं दिया, वो भी केस यहाँ पर है, और एक बार B को नहीं दिया, A को नहीं दिया, वो भी केस है, मतलब दो बार मैंने माइनस कर डाला, जो एक बार माइनस होने थे उसको प्लस करता हूं, 3c2 इंटू 1⁵। दिस इज नोन एज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑल्सो। ये अगर मुझे डिस्टिंक्ट चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्टिंक्ट लोगों पे, तब की बात हो गई, और उसमें भी रिस्ट्रिक्शन अगर लगे हुए हैं कि ईच मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1, तब इंक्लूजन एक्सक्लूजन में वो कन्वर्ट हो जाता है। पहले वो n⁻r में कब गया, जब मुझे डिफरेंट चीजों को डिफरेंट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन यही n⁻r इंक्लूजन एक्सक्लूजन में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन था कि हर एक को एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं बेटा, मान लो 2 लोग हैं ना,
इन दोनों को मान लो, एक को इतना पोर्शन दिया मैंने, राइट, जिसको मैंने नाम दिया NA का, दूसरे को मैंने इतना पोर्शन दिया जिसको नाम दिया NB का, राइट। बट दोनों के जो बीच में पोर्शन आ रहा है ये वाला, ये दोनों में इंक्लूड हो गया। लेकिन आपको अगर बात हो रही है कि हमने इसको दिया और दूसरे को भी दिया, तो वो वाला पोर्शन तो एक ही बार लेना चाहिए, तो उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। अमोघ, दिस ओके? अब देखो, इसको मैं 3 के लिए समझाता हूं। 1 2 3, राइट। अब NA जब मैंने लिखा, राइट, ये A है, ये B है, ये C है, NA में ये पूरा आ गया, राइट। तो इसमें तो वो भी पोर्शन आ गया जो इन दोनों के बीच में था, राइट। तो अगर M में NA लिखा तो वो पूरा, NB लिखा तो वो दूसरी बार फिर आ गया, राइट, उसे तो हटाना पड़े। और NC लिखा तो यही चीज B और C वाले के लिए, AC और BC वाले के लिए भी हुआ, तो मुझे 2 बार जो था वो हटाना पड़ेगा। तो NA इंटरसेक्शन B हटाया, वैसे ही B इंटरसेक्शन C हटाया, वैसे ही C इंटरसेक्शन A हटाया। लेकिन हुआ क्या, मैंने फर्स्ट केस में इसे हटाया, मतलब जो तीनों में कॉमन था, फिर सेकंड केस में भी इसे हटाया, थर्ड केस में भी इसे हटा दिया, राइट। तो ओवरऑल ये पोर्शन तो मेरा पूरा हट गया। तो मुझे एक बात तो चाहिए, अगर पूरे को लिख रहा हूं तो प्लस मैंने NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिखा। यही फॉर्मूला यहां पर आप ध्यान से देखो तो यूज हुआ है। इज दिस ओके अमोघ? थर्ड के लिए, 3 के लिए भी, 3 के लिए जैसे वैसे ही, 4 5 6 7 सब के लिए ये ऐसा ही चलेगा। ओके, ओके, या सो एक्सक्यूज मी, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। ज्योमेट्रिकल बहुत सारे होते हैं, जो काफी लोगों ने, आपने भी ये किया। सबसे पहला तो चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे और रेक्टेंगल होंगे? कई बार हमने किया भी है ये क्वेश्चन, जल्दी से कर लो एक तो। नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल।
ओके, पहले हम लोग देखते हैं मान लो रेक्टेंगल के लिए। तो ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 8 9 होते हैं, 1 2 3 4 8 9 होते हैं। मैंने 9C2 से, अच्छा ये पैरेलल लाइंस के लिए भी चलेगा, ऐसा 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 लाइन है, ऐसा पैरेलल लाइन है ना, और उसमें पैरेललोग्राम बनाने हैं। 9C2 से कोई भी दो लाइंस मैंने सेलेक्ट कर ली है, राइट। अब 9C2 से इधर भी दो लाइन अगर मैं कभी भी सेलेक्ट करूंगा तो मुझे एक हमेशा रेक्टेंगल मिलेगा ही मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इज दिस ओके? टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर के साइज होंगे, अगर मैं 8x8 का साइज ले रहा हूं तो केवल एक ही बनेगा मेरे पास। 7x7 का ले रहा हूं तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 से लेके 8 तक होगा, या 2 से 9 तक का लाइन होगा, और ये 2 स्क्वायर हो गया, राइट। 6x6 है तो 1 से लेके 7 तक होगा, 2 से लेके 8 तक होगा, 3 से लेके 9 तक होगा, एंड सेम इन द हॉरिजॉन्टल एंड दिस थिंग, तो 3 स्क्वायर हो गया। ऐसे करते करते राइट 8 स्क्वायर तक, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 8 स्क्वायर, ये आपको टोटल देगा, राइट। इसमें दो छोटे 1x1 के स्क्वायर आपको सेलेक्ट करने हों जो एक ही रो या एक ही कॉलम में हो, दैट मस्ट लाई इन वन रो और वन कॉलम। ये भी इसी में आएगा क्वेश्चन। You have to select two 1x1 square such that both the square must be in one row or one column. One row or one column. Okay. तो हमने क्या किया, 8C1 से सेलेक्ट कर दिया एक रो को, उसमें से दो सेलेक्ट कर लिए स्क्वायर, एक रो या एक कॉलम को सेलेक्ट करके उसमें से दो स्क्वायर हमने सेलेक्ट कर लिए। इज दिस ओके? इज दिस ओके, राइट। अगर मैंने एक डेकागन लिया, राइट, इस डेकागन में यू हैव टू फॉर्म अ ट्राइंगल with the vertex such that first ट्राइंगल फॉर्म करने हैं, सेकंड इन एनी वे, राइट, one side is the side of decagon, third two sides are sides of decagon, and fourth no sides are the sides of decagon, right? 3 क्वेश्चन।
Done. Very good, Sita. Naman, very good. Kevin, very good. Aman, very good. Very good, everyone. Very good. Very good. Triangle will be 10C3, one side common, right? So any one side I'm taking, right? 10C1. These two are not taking 6C1. Two sides common, only 10 ways. No side common. Either this minus of this and this, right? One of the way. Or we can select 10C1, one vertex, and we are not selecting these two to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, we have taken out 2, 5, 6C2 upon 3, something like this, right? जैसे चाहो subtract करके या ये, right? So total number of point of intersection. Point of intersection. अगर लाइंस मेरे पास है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास होते हैं NC2, दो लाइंस के, राइट? एक सर्कल के साथ लाइन बन रहा है तो NC2 into 2, like it may be NC2, or you can say N1C1 and N2C1 into 2. The number of straight line will be N1 and number of circles will be N2, and separately it will go as this and this into 2. Right, total number of point of intersection with all this. Okay, so geometrical में lot many questions are there, right? Possibilities are there, right? For the basic you can say you can go through this, right? And one more thing was there. Distribution of identical object. Identical object. So use x plus y plus z is equal to, अच्छा, someone number of integral solution. इसमें क्या दिक्कत बेटा? जैसे मैं बोल रहा हूँ x plus y plus z is equal to 10, where x, y, z belongs to the whole numbers, right? So directly we can write the answer ना. This is 12C2. क्या फॉर्मूला बताया था? 10 plus 3 minus 1 C3 minus 1. Is this okay? राइट, और यही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आइडेंटिकल के लिए, यही काम है आपको, राइट? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट होंगे तब यही काम है. अगर दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर काउंटिंग. एक इंटेलिजेंट काउंटिंग का तरीका रहेगा आपका. ओके, किसी का कुछ छूट गया हो, वांट टू आस्क एनीथिंग मोर ऑन दिस, प्लीज आस्क. Clear? Okay, thank you, thank you. Inclusion exclusion in PNC, right? पिजन होल नॉट रिक्वायर्ड बेटा, IIT के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, अलग से हम लोग देख लेंगे उसे. सी, मैंने 3 डाइस लिए, राइट? तीनों डाइस जो मेरे पास है इसमें सम आना चाहिए, मतलब तीनों मिला के हमारे सम 10 आने के केसेस कितने होंगे? तो हमने कहा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 होनी चाहिए. इसे दे दिया T1 प्लस 1, T2 प्लस 1, T3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू आ गई 7. यहाँ पर कोई भी Ti जो है वो 0 से 5 के बीच में होगा. ध्यान से देखना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा रहा हूँ, राइट? यहाँ पे टोटल आंसर अगर मैं लिखता तो 7 प्लस 3 10 माइनस 1 7C2 और 9C2 और 9C7, राइट? माइनस 3C1. तीन में से एक नंबर जो है वो 5 को क्रॉस किया होगा, तो उसे मैंने लिखा 5 को क्रॉस किया होगा तो Z1 प्लस 6 प्लस T2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, मीन्स Z1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 1. 1 प्लस 3 4 माइनस 1 3C1.
Is this okay? Is this okay? स्निग्धा, ये पहला इंक्लूजन एक्सक्लूजन का रहा। इसमें ना बाइनोमियल इन पीएनसी बहुत सारे केसेस हैं, राइट। क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे उस पर डिपेंड करता जाएगा। एनीथिंग एल्स?